جادوئی کنواں۔ ایک گاؤں کی بات ہے جس میں پانی کی بہت قلت تھی۔ لوگ بھوکے پیاسے مر رہے تھے، مال مویشی بھی پیاس اور بھوک سے نڈھال تھے۔ گاؤں میں بہت پریشانی والا ماحول تھا۔ گاؤں کے سرپنچ نے اس معاملے پر بیٹھک بلائی۔ گاؤں کے لوگوں، میں نے آپ لوگوں کو آج یہاں جس لیے جمع کیا ہے آپ لوگوں کو بھی اندازہ ہوگا۔ ہاں بالکل سرپنچ جی، پانی کی بہت قلت ہو گئی ہے گاؤں میں، اب تو یہاں رہنا بھی مشکل ہو گیا ہے۔ ہاں یہ تو ہے، لیکن ہم سب لوگ گاؤں چھوڑ کر جائیں گے کہاں اور کریں گے کیا؟ یہاں بھی تو بھوکے مر رہے ہیں، اس سے بہتر ہے کہیں اور چلے جائیں رزق کی تلاش میں۔ اس بار بارش بھی نہیں ہوئی، اگر بارش ہو جائے تو ہمارا گاؤں ہرا بھرا ہو جائے گا۔ اتنے میں ایک عورت بول پڑتی ہے۔ سرپنچ جی، سنا ہے گاؤں سے کچھ فاصلے پر اس پہاڑی کے پیچھے ایک کنواں ہے جو کافی پرانا ہے اور شاید اس میں پانی بھی ہے، لیکن وہاں جانے کی کسی کو اجازت نہیں۔ ہاں وہ کنواں پرسرار ہے، لیکن یہاں سے بہت دور بھی ہے۔ اگر سورج ڈوبنے سے پہلے وہاں سے پانی بھر کے واپس چلے جائیں تو کوئی گھبرانے کی بات نہیں۔ تو صحیح ہے، جب تک بارش نہیں ہوتی ہم وہیں سے پانی بھرنے جائیں گے۔ پھر سب لوگ اپنے اپنے گھروں میں چلے جاتے ہیں اور اگلے دن گاؤں کی کچھ عورتیں اور بچے مل کر اس کنویں سے پانی بھرنے کے لیے روانہ ہوتے ہیں۔ عورتیں چلتے ہوئے باتیں کرتی ہیں۔ بانو، کیا کہتی ہو اس کنویں کے بارے میں؟ کیا ہو سکتا ہے وہاں؟ میں کیا کہوں، مجھے تو خود معلوم نہیں کہ وہ پراسرار کیوں ہے۔ اچھا چلو جلدی چلو، وہیں جا کے شاید معلوم ہو کہ ایسا کیا ہے اس کنویں میں۔ پھر وہ عورتیں کنویں کے پاس پہنچ جاتی ہیں۔ بچوں، تم لوگ کنویں سے دور ہی رہنا، کہیں گر نہ جاؤ۔ آپ لوگ پانی بھریں، ہم یہیں کھیلتے ہیں۔ پھر بچے کھیلنے لگتے ہیں، عورتیں اس کنویں سے پانی بھرتی ہیں۔ سارا کے پاؤں میں چوٹ لگ جاتی ہے اور وہ ابھی پانی نہیں بھر سکتی۔ سارا، تم نے ابھی پانی نہیں بھرا؟ ہم نے تو بھر لیا، ہم چلے جائیں گے تو تم اکیلی ہو جاؤ گی۔ کوئی بات نہیں بانو، آپ لوگ چلے جاؤ، میرے پیر میں چوٹ لگی ہے، تھوڑا درد کم ہو جائے تو آتی ہوں میں بھی۔ پھر ساری عورتیں اپنے بچوں کے ساتھ وہاں سے چلی جاتی ہیں۔ سارا اپنے بیٹے کے ساتھ اکیلی رہ جاتی ہے۔ سارا کا بیٹا بال کے ساتھ کھیل رہا ہوتا ہے اور سارا درد کی وجہ سے کنویں کی سائیڈ میں بیٹھی ہوئی تھی۔ اچانک بچے کی بال کنویں میں چلی جاتی ہے۔ ماں، میری بال کنویں میں گر گئی، مجھے نکال کے دو۔ ارے بیٹا، یہ تو نے کیا کیا؟ اب میں کیسے نکالوں؟ میرے پاؤں میں بھی بہت درد ہے۔ مجھے بال چاہیے، مجھے بال چاہیے۔ پھر سارا اس کنویں کے قریب جاتی ہے اور اندر جھانکتی ہے، بال پڑی تھی۔ کاش یہ بال کوئی نکال دے، میرا بیٹا کتنا رو رہا ہے۔ اور بال خود بخود اڑتی ہوئی باہر آ جاتی ہے۔ سارا یہ منظر دیکھ کر حیران رہ جاتی ہے اور کہنے لگتی ہے، ارے واہ، یہ تو چمتکار ہو گیا، کاش کہ پانی بھی میرے برتنوں میں کوئی بھر دے۔ اور پھر سارے برتن پانی سے بھر جاتے ہیں۔ وہ بہت خوش ہوتی ہے اور اس وقت سورج ڈوبنے کا ٹائم ہونے لگتا ہے۔ سارا کو وہ بات یاد آ جاتی ہے کہ سورج ڈوبنے سے پہلے وہاں سے نکلنا ضروری ہے۔ پھر وہ اپنے بیٹے کو لے کر وہاں سے چلنے لگتی ہے تو اچانک ہنسنے کی آواز آتی ہے۔ ہا 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 ہا۔ سارا ذرا رکو تو، کیا جلدی ہے؟ اور بھی چیزیں نکال لو، کنویں سے کیا اور کچھ نہیں چاہیے؟ سارا بہت ڈر جاتی ہے اور اپنے بیٹے کو لے کر وہاں سے جلدی بھاگنے لگتی ہے اور اچانک اس کے پیچھے ایک خوفناک جانور لگ جاتا ہے۔
वो एक बहुत बड़ा मगरमच्छ था। रुको ज़रा सारा, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। तुम्हारे घर पर ज़रा मुझ पे सवार तो हो जाओ, बहुत मज़ा आएगा। हो 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 हो। वो उस जादुई कुएं का रखवाला था जो सारा के पीछे पड़ गया और उसको पकड़कर कुएं में ले जाना चाहता था। फिर सारा और उसका बेटा तेज़ी से वहाँ से भाग गए और फिर कभी उस कुएं के पास न आए। कारपेंटर चींटी। ठक ठक चींटी अपने काम पे जा रही थी। रास्ते में उसको टिमटिम चींटी मिलती है। कहाँ जा रही हो ठक ठक? मैं तो अपने काम पे जा रही हूँ। तुम क्यों फालतू इधर उधर घूम के अपना टाइम बर्बाद कर रही हो? अरे तुम्हें क्या पता, ऐसे घूमने फिरने में कितना मज़ा होता है। वैसे भी मैं अपनी माँ की लाडली हूँ, मुझे वो कोई काम नहीं करवाती। अच्छा मेरा रास्ता छोड़ो, मुझे जाने दो। फिर ठक ठक चींटी आगे बढ़ जाती है। वो एक जगह पहुँचती है जहाँ बहुत सारी चींटियाँ उसका इंतज़ार कर रही थी। अरे आओ ठक ठक, कहाँ रह गई थी तुम? हम कितनी धूप और गर्मी में खड़े तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं, तुमने इतनी देर क्यों कर दी? बस मैं अभी एक शानदार घर बना देती हूँ तुम लोगों के लिए। फिर ठक ठक चींटी एक बड़ी लकड़ी में घर तैयार कर देती है और अपना मुआवजा लेकर चली जाती है। फिर उसे रास्ते में चूचू चींटी मिलती है। अरे ठक ठक, कहाँ जा रही हो? मैं घर वापस जा रही हूँ, अपना काम खत्म करके। अच्छा सुनो, आज महारानी चूची चींटी के घर बहुत बड़ी दावत है, क्या तुम भी आ रही हो शाम को वहाँ? हाँ ज़रूर, क्यों नहीं। वहाँ बहुत सारा खाना मुफ्त में मिल जाएगा और मज़ा भी बहुत करेंगे। अच्छा मैं भी चलती हूँ, शाम को मिलते हैं वहाँ। मोहल्ले की चींटियाँ बहुत खुश थीं दावत पर जाने के लिए, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि कितनी बड़ी मुसीबत उनके आगे आने वाली है। अभी ठक ठक चींटी घर पहुंची ही थी कि एक आदमी पानी का पाइप लिए घर से बाहर आया। आज बहुत गर्मी है और ज़मीन बहुत गर्म हो गई है, थोड़ा ठंडा कर लेता हूँ पानी से। फिर उस आदमी ने ज़मीन पर पाइप से पानी बरसाना शुरू किया। अरे ये क्या हो रहा है? बंद कर दो इसे, हम मर जाएंगे। लेकिन वो आदमी तो उसको सुन नहीं सकता था और इतना पानी बरसाया कि चींटियों के सारे घर पानी में बहने लगे। अरे हम तो डूब रहे हैं, कोई बचाओ। इतने में ठक ठक चींटी कुछ लकड़ियाँ जमा करके एक कश्ती बना लेती है। इस तरह वो कश्ती की मदद से डूबती हुई चींटियों को बचा लेती है। जैसी करनी वैसी भरनी। ये कहानी है 3 चोरों की जो साथ मिलकर हर रात किसी न किसी के घर चोरी करने जाते थे और चुराया हुआ माल आपस में बराबर बराबर बांट लेते थे। एक बार की बात है जब वो 3 चोर एक गांव में चोरी करने के लिए जाते हैं और वहां एक शाहूकार के घर से बहुत सारा माल, रुपए, पैसे, जेवर चुरा लेते हैं। चलते चलते थक हार के एक जगह सांस लेने के लिए बैठ जाते हैं और आपस में बातें करने लगते हैं। आज तो बहुत सारा माल हाथ लगा है। हाँ, अब तो कुछ अर्सा आराम से बैठ के मजे से खाएंगे। आज तो खजाना हाथ लगाए, अब इसे आपस में बांट लेते हैं। उन्हें भी क्या जल्दी है, थोड़ा आराम कर लेते हैं, उसके बाद सामान भी बांट लेते हैं। बहुत भूख लगी है, पहले कुछ खा लेते हैं। मैं बाजार जाता हूँ और मिठाई ले आता हूँ, आज खुशी का मौका है। और वो बाजार के लिए रवाना हो जाता है। बाकी 2 चोर सामान की रखवाली के लिए वहीं बैठ जाते हैं। जो चोर मिठाई लेने जाता है उसके मन में लालच आ जाती है और वो सोचता है,
क्यों ना दोनों को मिठाई में जहर मिला के दे दूं ताकि चोरी किया हुआ सारा माल मेरा हो जाए। उधर जो चोर सामान की रखवाली पे बैठे हुए होते हैं उनके दिल में भी लालच आ जाता है और वो आपस में सलाह करते हैं कि क्यों ना कुछ ऐसा बंदोबस्त किया जाए जिससे वो एक मर जाए और हम दोनों आपस में माल आधा आधा रख लें। कुछ देर गुजर जाने के बाद वो चोर बाजार से मिठाई लेकर पहुंच जाता है और उसके मन में लड्डू फूट रहे होते हैं कि आज तो मैं अमीर बन जाऊंगा, बस ये लोग मिठाई खा लें। और वो दोनों भी बहुत खुश होते हैं कि आज ये तो मर जाएगा और हम दोनों माला माल हो जाएंगे। इस तरह वो खुशी से मिठाई खा लेते हैं, लेकिन वो जो लाया था वो नहीं खाता। वो जहरीली मिठाई खाते ही दोनों मर जाते हैं और जो एक बाकी बचता है वो बहुत खुश होता है और खुशी से माल की पोटली उठा लेता है और सोचता है, अब तो ये सारा माल मेरा हुआ, मैं अमीर बन गया। और खुशी से पोटली खोल के माल को देखता है। वो जैसे ही पोटली खोलता है उसमें एक बहुत जहरीला सांप होता है जो उसे फौरन डस लेता है। इस तरह वो भी वहीं पे ढेर हो जाता है। वो सांप उन दो चोरों ने रखा था जो मिठाई खाकर मर गए थे। इससे ये साबित हुआ जैसी करनी वैसी भरनी। किसी और के लिए बुरा चाहोगे तो तुम्हारे लिए भी बुरा ही होगा। चोर बिल्ला। एक बहुत खूबसूरत और खुशहाल गांव था जहाँ पे लोग आपस में मिलजुल के बहुत मोहब्बत से रहते थे। लेकिन एक दिन जैसे उनकी खुशियों को नज़र लग गई। शाम का वक्त था और बाज़ार में कारोबारी टाइम चल रहा था। लोग चीज़ें ख़रीदो फरोख्त करने आ रहे थे। अचानक किसी बहुत भारी पैरों की आवाज़ आने लगी। अरे ये कैसी आवाज़ है? ये कौन आ रहा है? अचानक से वहाँ एक बहुत बड़ा जंगली बिल्ला आता है। वो बहुत खौफनाक और डरावना होता है। हा हा हा, आज बड़े अरसे के बाद मेरी आँख खुली है। आज तुम में से कोई नहीं बचेगा। हा हा हा, बड़ी भूख लगी है। लोग उसे देखकर बहुत डर जाते हैं और इधर उधर भागने लगते हैं। भागो भागो, अपनी जान बचानी है तो भागो। सब लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। वो खौफनाक बिल्ला उनके पीछे पड़ जाता है। कैसे भी करके लोग अपनी जान बचाकर भाग जाते हैं और अपने घरों में छुप जाते हैं। वहाँ वो बिल्ला उनका छोड़ा हुआ सामान चुरा लेता है और खाना खा के जंगल में भाग जाता है। कुछ दिन इस तरह से ही बिल्ला वहाँ पे रोज़ाना आता है और लोग डर के भाग जाते हैं और बिल्ला उनका सारा सामान चोरी करके भाग जाता है। लोग उससे बहुत परेशान और डरे हुए थे। फिर एक दिन उनमें से एक आदमी तरकीब लगाता है। इस खौफनाक बिल्ले ने तो हमें परेशान कर रखा है, इसको ख़त्म करना होगा। कैसे ख़त्म करेंगे उसे? वो तो इतना भयानक है। दिन में वो बिल्ला अपने घर से बाहर नहीं निकलता, उसको उसी वक्त जला देंगे। तुम ठीक कह रहे हो खालिद, हमारे इस काम से पूरे गांव को फ़ायदा होगा। आखिर कब तक झेलेंगे उस बिल्ले को? इस गांव में एक जंगल है, वो बिल्ला वहीं पर रहता है, एक गुफा के अंदर। हमें वो गुफा जलानी होगी और बहुत होशियार रहना पड़ेगा क्योंकि वो कभी भी हमारे ऊपर हमला कर सकता है। वो बिल्ला अपनी गुफा में सो रहा होता है और वो लोग उसे जला देते हैं और फिर आगे की ज़िंदगी अपनी खुशी से गुजारते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। ऑल बेल आइकन को दबाना नहीं भूलें।